So there has been some technical fault that has been removed by our friends, and we are returning to the poem again. And now the really important part of the poem begins. The poet is addressing the upper class people. He is advising them not to ridicule, उपहास करना, मजाक उड़ाना. गरीब आदमी का मजाक उड़ाया जाता है ना. बड़े लोग जो हैं वो गरीब आदमियों का उपहास करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं कि ये भी कोई मानवीय प्राणी है क्या. थॉमस ग्रे इज एडवाइजिंग देम, इज टीचिंग देम, अब बंद हो गया है, नॉट टू अब ठीक, उस पे डबल क्लिक कर दिया. हाँ ठीक, नॉट टू रिडिक्यूल द लोअर क्लास पीपल बिकॉज दे आर एज गुड ह्यूमन बींग्स as anyone else. Let not ambition. Look at the word ambition. It is beginning with capital letter. So this is the neoclassical quality. Abstract. Ambition is an abstract. एक अमूर्त चीज है, महत्वाकांक्षा. और अबस्ट्रैक्ट्स को कैपिटल लेटर में लिखने की परंपरा थी नियोक्लासिकल एज में. या एम्बिशन का अर्थ ambitious people है, ambitious people of the upper class mock their useful toil, labor. The work of these villagers was very useful for the society. The work of these villagers was very useful for the society, and therefore they should not ridicule it. वो इसका मजाक न उड़ाए. अरे भाई, there is the problem in the recording. I'm sorry. बार डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें रिकॉर्डिंग के अंदर, लेकिन you are likely to get it in the PDF form and in your home assignment. लेकिन जो लाइव का जो आनंद है वो आनंद तो नहीं आ सकता ना. सो द पोइट इज एडवाइजिंग द अपर क्लास पीपल नॉट टू रिडिक्यूल द लोअर क्लास पीपल because their work was very important for the society. Their homely joys, domestic life, domestic pleasures. The upper class people are advised not to ridicule the domestic life of the villagers, because their work was very useful for the society and they have their own domestic pleasures. Nor grandeur, great persons, powerful persons. Again, the use of the capital letter. Great persons here with a disdainful smile, scornful, नफरत भरी. The great persons scornful smile. Great persons are advised not to hear the story of the poor villagers with the scornful smile, the short and simple annals of the poor. The poem is short and simple annals of the poor, and they should hear it with due honor. कह रहा है कि सम्मान के साथ सुने, इज्जत के साथ सुने. मैं उनकी कहानी गाने जा रहा हूँ. Again there is some problem. Yes, it has been removed. So the poet advises the upper class people not to ridicule
the work, the labor of these poor peasants, their homely joys, and destiny obscure, destiny, luck, obscure, hard. Their luck was very hard. लेकिन उसका वो मजाक न उड़ाए. ये जो लाइन है, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर. एनाल्स मीन्स हिस्ट्री, इतिहास. मैं एनाल्स के बारे में, इस लाइन के बारे में मैं दो चीज़ों की तरफ आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. एक तो ये कि दिस पोइम, दिस लाइन इज द इंट्रोडक्शन टू द थीम ऑफ दिस पोइम. This poem is the short and simple annals of the poor. Annals means history, and the word annals is not used in singular form. आप ग्रामर के हिसाब से याद रखें कि कभी भी एनल शब्द काम में नहीं आता है. It is always with s because it is always with the in plural form. So the poet is going to sing the short and simple annals of the poor, and the upper class people, the rich people, the powerful people, the educated people should hear it with due honor and due attention. क्यों सुने ध्यान से? क्यों सुने ध्यान से? अगले स्टेंजा में इसका उत्तर देगा कि वो ध्यान से क्यों सुने. वो ध्यान से इसलिए सुने, देखो बहुत अच्छा स्टेंजा है, and it is very important. It is full of wisdom. There is no difference according to Thomas Gray. Nature has not made any difference between upper class people and lower class people. God has not created any difference between the king and the beggar. और बहुत अच्छी बात कह रहा है वो. The boast of heraldry. Heraldry, वंश, कुल. मैं इस वंश का हूँ, मैं सूर्य वंश का हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ, इसकी हम डींग हाँकते हैं. ग्रे कहता है कि मान लिया यू आर बोर्न इन रॉयल फैमिलीज, यू आर बोर्न इन हाई फैमिलीज, बट रिमेंबर दैट योर हाई बर्थ इज नॉट एन आर्मर अगेंस्ट डेथ. ऐसा तो है नहीं कि मौत जो है वह सम्मान करेगी इस बात को देख करके कि ये तो बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ है, इसको तो मारना नहीं है. जब मौत के लिए सब सम्मान है तो फिर हम ये अंतर क्यों कर रहे हैं. सो द अपर क्लास पीपल बोस्ट ऑफ द रॉयल बर्थ. डींग हाँकते हैं मैं शाही कुल में पैदा हुआ हूँ. द पोम्प ऑफ पावर, पोम्प, शो. The powerful people have power, but that has no respect for power. The powerless will die, the powerful will die. When death is the leveler, then why should we insult the poor people? So the birth in the high place, the birth in the high family, the show power and all that beauty, the benefits of beauty, all that wealth ever gave. देखो धनवान लोगों के पास, शक्तिशाली लोगों के पास क्या है? They have wealth, they have beauty, they have power, they have name, they have fame. But all these things are meaningless before death. Awaits alike the inevitable hour. Inevitable, अच्छा शब्द है. Inevitable, that cannot be postponed. That cannot be postponed. जिसको आगे नहीं खिसकाया जा सकता, जिसको आगे नहीं खिसकाया जा सकता. पोइट क्या कह रहा है कि एवरीवन इज वेटिंग फॉर डेथ, विच आवर इज इनइविटेबल. डेथ इज एन इनइविटेबल आवर.
Nobody can postpone that. अपनी पावर है, मान लिया यू हैव पावर, यू हैव ब्यूटी, यू हैव वेल्थ, यू हैव नेम ऑफ द हाई फैमिली, बट दे विल आल्सो डाई, द पुअर विल आल्सो डाई। तो फिर ये घमंड कैसा और ये अपमान कैसा? नो वन इज डिवाइन, नो वन इज सुपीरियर, द अपर क्लास पीपल आर नॉट सुपीरियर। Had they been superior, had they been the elected of God, then they would not have died. So everyone is waiting for death. Therefore, the possession of power, the possession of beauty, all these worldly possessions are meaningless. The paths of glory lead but to the grave. Underline these lines. Underline this line. This has become a proverb. This line has become a proverb. The paths of glory lead. जो बड़े बड़े गर्व के रास्ते हैं, सफलता के रास्ते हैं, वो सब के सब कहाँ जाते हैं? कब्र की तरफ जाते हैं। मौत महबूबा सबको निकल जाएगी। मैंने बताया था आपको कि दिस पोइम इज अ वेरी सीरियस पोइम. दिस पोइम एक्सप्रेसेज सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स, शाश्वत सच्चाइयाँ बता रहा है. मेरे याद दिलाता है कि सिकंदर होने का क्या फ़ायदा, बहुत धनवान होने का क्या फ़ायदा, जब अल्टीमेटली सबको मरना ही है. व्हेन डेथ इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन, जब प्रत्येक मानवीय प्राणी का मौत जो है वह गंतव्य स्थान है, तो फिर घमंड किस बात का, तो फिर इन गरीबों पर अत्याचार क्यों, विक्टिमाइजेशन क्यों. देखिए विद्यार्थियों, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ दिस स्टेंजा. You can see the seeds of democracy in this stanza. After all, what is the doctrine behind kingship? राजत्व के पीछे सिद्धांत क्या है, सामंतवाद के पीछे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि God, the king is divine. The king is, what is the divine theory of kingship? राजत्व का देवीय सिद्धांत क्या है कि the king is a representative of God on the earth, and therefore the power of king cannot be challenged. लेकिन यहाँ गरे अलग चीज़ कह रहा है. गरे ये कह रहा है कि if the king is divine, if the king is divine, why does he die? अगर वो देवीय है तो वो मरता क्यों है, वो मरता क्यों है, वो बुजुर्ग क्यों होता है? यही नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है. नेचर हैज़ नॉट मेड किंग्स, nature has not made royal class, nature has not made rich and poor, nature has not made powerful and weak, nature has made us equal human beings. So death is the ultimate destination of life. That death is for everyone. Death has no respect for beautiful, death has no respect for powerful, death has no respect for royal, death has no respect for anyone. When death is common to all, when death must come, it will come, it must come, तो फिर ये घमंड किस बात का? So in the third stanza, in this line, the third stanza, nor you ye proud, now he is addressing the proud persons. Impute, impose, लगाना, IMPOSE, fault, दोष. क्या कह रहा है कि इन गरीबों पर, घमंडी लोगों, तुम कोई दोष मत बनना. किस चीज़ के लिए वो दोष? हमारे लिए बहुत बड़ी एडवाइस है. आज भी हम लोग मृत्यु भोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो क्या कह रहा है? If memory over their tomb no trophies raise. Trophies, निशानियाँ. ठीक है, इन गरीबों की याद में, इन गरीबों की याद में कोई ताजमहल नहीं बनाया गया, इन गरीबों की याद में कोई स्मारक नहीं बनाया गया, तो भी इनको दोष न दें. The poet is addressing the upper class people and he advises them not to blame the poor people if memories have not been erected on their tombs.
where through the long drawn aisle and fretted vault, long drawn aisle, streets of the church, fretted vault, decorated roof. भाई चर्च में या मंदिर में किसके गीत गाए जाएंगे? तो दान देगा, जो पैसे देगा। ठीक है, इन गरीबों के पास तो दान देने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए कह रहा है कि ठीक है कि नो बिल्डिंग वाज इरेक्टेड इन देयर मेमोरी, सॉन्ग्स आर नॉट संग, गीत नहीं गाए जाते, इन देयर प्रेज इन द स्ट्रीट्स ऑफ द चर्च, इन द कॉरिडोर ऑफ द चर्च एंड फ्रेटेड वॉल्ट, द पीलिंग एंथम, पीलिंग इकोइंग, एंथम सॉन्ग, म्यूजिक और सॉन्ग। Swells means echoes the notes of praise. In simple English, I can say the poet says that songs of praise are not sung in the praise of the poor people. Buildings are not erected in the memory of the poor people. क्योंकि भाई उनको तो रोजी रोटी की पड़ी है, वो लोग जो हैं वो बिल्डिंग कहाँ से बनाएंगे? लेकिन पोइट कह रहा है कि नहीं, इसके बावजूद भी यू हैव नो राइट टू ब्लेम देम, कि आप उनको ब्लेम न दें, आप उनको दोष न दें। क्यों न दें? बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस देखिएगा, जो पोस्ट डेथ, आज के लिए लास्ट स्टेंजा वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मौत के बाद हम क्या क्या करते हैं? हिंदुस्तान के हिसाब से सोचें तो मृत्यु भोज करते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, ताजमहल ने सॉरी शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, बाकी भी, लेकिन वो किसका पैसा है और क्या काम आता है? यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न पूछ रहा है कि ठीक है कि धनवान लोग जो हैं अपने रिलेटिव्स की आदमी, वो दे कैन रेज बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग बना देते हैं। सॉन्ग्स ऑफ प्रेज आर संग इन चर्चेज, उनकी प्रशंसा में गीत भी गाए जाते हैं। वो अर्न भेंट करते हैं, अर्न, URN, अर्न, कलश। ईसाइयों की परंपरा है ये कि वो चर्च पर अपने मृत रिश्तेदार या प्रियजन की जीवन कहानी लिख करके भेंट कर देते हैं ताकि आए हुए लोग पढ़ सकें। लेकिन पोइट क्या कहता है कि मौत के बाद तुम क्या करते हो? दैट इज मीनिंगलेस फॉर द डेड पर्सन। मर गया, उसके लिए तो मीनिंगलेस है। पोस्ट डेथ सेरेमनी, पोस्ट डेथ pomp and show, मौत के बाद का दिखावा इज ऑल टुगेदर मीनिंगलेस, इज ऑल टुगेदर फ्यूटाइल। क्या क्या करते हैं? कैन स्टोरीड अर्न, अर्न कलश। ठीक है, धनवान लोग हो तुम, तुम्हारे रिश्तेदारों की याद में स्टोरी लिख करके कलश भेंट करते हो। एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड बस्ट, लाइफ लाइक स्टेच्यूज, लाइफ लाइक स्टेच्यूज। You erect life-like statues in the memory of your relatives and in the memory of your friends, कि तुम अपने मित्रों की याद में तुम जो है वो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाते हो। लेकिन पोइट कहता है कि कैन योर अर्न, कैन योर स्टेच्यू बैक टू इट्स मेंशन, मेंशन बिल्डिंग, दिस बॉडी इज द बिल्डिंग। ये शरीर जो है वो भवन है और सांस इसका मालिक है। सांस चला गया तो उसके बाद चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो पोइट ये कहता है कि कैन द स्टेच्यू, कैन द अर्नर ब्रिंग बैक द फ्लीटिंग ब्रीथ, फ्लीटिंग डिपार्टेड फ्लाइंग ब्रीथ back to its mention. Mention is the body. The poet asks if the urn or the statue can make the dead person alive for 5 minutes. कि तुमने जो आदम की मूर्तियां बना दी दुनिया का खून चूस करके, और तुमने जो ये अर्न सोने की चांदी की भेंट कर दी मंदिर मस्जिद और चर्च में, क्या वे मृत व्यक्ति को 2 सेकंड के लिए भी
जीवित कर सकते हैं? नहीं तो फिर फायदा क्या? और कैन ओनर्स वॉइस, क्या करते हैं? धनवान लोगों के सम्मान में गीत गाए जाते हैं। तो पोइट पूछता है कि क्या वो सम्मान की गीत प्रवोक द साइलेंट डस्ट, प्रवोक स्टीयर, हिलाना, साइलेंट डस्ट ऑफ द डेड बॉडी, कि क्या डेड बॉडी की कानों को प्रशंसा सुनकर के आराम मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर क्यों जागरण करवाते? उनकी आदमी गरीब आदमी है, वो बेचारा रोजी रोटी कमाए या जागरण करवाए। लेकिन ग्रे क्या कह रहा है कि जो जागरण करवा रहे हैं दैट इज आल्सो यूजलेस, दैट इज आल्सो फ्यूटाइल। और फ्लैटरी चापलूसी, सूथ मीन्स कंफर्ट, COMFORT, आराम पहुंचाना। क्या मरने के बाद मरने वाले की चापलूसी करते हो? द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, मौत ने जिसके कान ठंडे कर दिए, क्या उनको फ्लैटरी में आनंद आता है? अगर एक लाइन में इसकी समरी बताऊं मैं आपको, तो इस स्टेंजा में क्या बताया? पोस्ट डेथ pomp and show is meaningless, is useless. A dead person is not affected by all these things. आप मरे हुए व्यक्ति के सम्मान में चाहे आप मृत्यु भोज करें, चाहे आप ताजमहल बनाएं, सब का सब फ्यूटाइल है। वो एक सेकंड के लिए भी सुनने नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे। दिस इज द रियल ट्रुथ। धनवान लोग गरीबों के शोषण के आधार पर एकत्रित किए हुए धन से रूलिंग क्लास जो है वो सब ये नाटक करती है। लेकिन ग्रे कहता है कि इन नाटकों का मीनिंग क्या है, इन नाटकों का अर्थ क्या है? मर गया वो मर गया, देयरफॉर दिस इज यूजलेस। किस प्रकार से? बस बंद कर दो इसको, प्लीज बंद कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, इट इज एनफ। ऑल दीज will be sent to you through PDF form as well. We have taken 3 or 4 very important stanzas. उनके मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी डाल के दूंगा। तो प्लीज टेक केयर, गुड बाय टिल देन।